Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is your second chapter, consumer behavior. This is not a new word for you all, as you all have learned the concept of consumer behavior in your 12th standard also. Now, consumer behavior. As you all know, consumer is the king of a market. Okay, in every market, consumer is to be given more important than any other person who is associated with the market. Okay, consumers behavior, depending on the consumers behavior, there is demand and supply for a product. Okay, now how consumer behavior can be derived? Consumers behavior is derived from the satisfaction he gets after using a particular product. Okay, now consumers behavior. Okay, now in this chapter you are going to learn some concepts which you have already learned in your 12th standard also. The first thing is utility. This concept is a known concept for you all. You all have learned what is utility, types of utility. There are 3-4 types of utility that you all have learned in your 12th. So the new concept for you this time is cardinal approach. As you all have learned what law of demand, law of supply, but you all have also learned what is marginal utility. But in today's in FY become, you are going to learn what is law of diminishing marginal utility and law of equimarginal utility. Then the next concept you are going to learn is consumer surplus. What is the consumer surplus, the concept, and how it is measured. Okay, then you are going to learn ordinal approach. Ordinal approach, you are going to learn what is indifference curve analysis, concept, characteristics, and consumer equilibrium. These are few concepts that you all are going to learn in your second chapter, that is consumer behavior. Okay, now what is utility? The first thing you all are going to learn. Now utility is nothing but the maximum satisfaction a consumer gets after using a particular product. ओके, कंज्यूमर यूटिलिटी कुछ भी नहीं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है आफ्टर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द एक्सपीरियंस व्हाट ही द सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस बाय अ कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज़ नोन एज यूटिलिटी. जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, हम लोग उसका पहले यूज़ देखते हैं कि ये सही में हमें यूज़ होगा या नहीं. अगर वो प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं होगा, हम लोग कुछ उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो उसका हम लोगों को कुछ मतलब हम लोग खरीदने नहीं जाएंगे. जैसे कि मोबाइल हमारे लिए आज के टाइम में, कोरोना पेंडेमिक में मोबाइल, हमारे लैपटॉप्स बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि दे विदाउट देम वी कैन नॉट हैव आवर क्लासेस. इन द सेम वे here, whatever product we are buying, we will first see the usefulness of that product, only then we are going to buy that product. So those are known as the whatever satisfaction we experience after using that product. जब हम लोग मोबाइल ख़रीदते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास कितना, मोबाइल ख़रीदने से हम लोग हमारा ऑनलाइन क्लास हम लोग अटेंड कर सकते. तो तब हमें पता चलता है कि ये मोबाइल की कितनी है यूज़फुलनेस है. तो here this utility, now this utility is measured into two distinct techniques, that is cardinal and ordinal measures of utility. So here this approaches of consumer, जो consumer है उसका जो behavior है वो हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द ऑर्डिनल यूटिलिटी थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो कंज्यूमर के बिहेवियर को दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके पहले मुझे थोड़ा रिवाइज करने दो आपके 12th स्टैंडर्ड में व्हाट यू ऑल हैव लर्न. यू ऑल मस्ट हैव लर्न द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. देयर आर 4 types of utility.
फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी मतलब अगर हमारे पास अभी कोई एक वुड है, ओके, एक पेड़ है जिसका हम लोगों ने एक पीस लाया है, तब हम लोग उसको कुछ यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन उस पीस को अगर हम लोग कन्वर्ट करके एक छोटा सा टेबल बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वी आर कन्वर्टिंग दैट द ब्लॉक ऑफ वुड. ओके, वुड का जो ब्लॉक है उसको हम लोग कन्वर्ट करके जब हम लोग टेबल बनाते हैं तब उस टेबल का हम लोगों को बहुत यूज़ होता है. ऐसे ही अगर हम लोगों ने वुड रखा तो वो कुछ यूज़ का नहीं है. लेकिन जो वुड हम लोग इफ़ यू कन्वर्ट इट to a table, okay, if you form that wood piece into a table, that is known as form utility. मतलब जो भी चीज़ अगर हम लोग उसको चेंज करके कुछ और बनाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा यूज़ में आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड वन इज टाइम यूटिलिटी. अभी जब हाँ अभी टाइम यूटिलिटी का मतलब नाउ सपोज दिस इज़ सपोज अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा था. अगर हम लोगों ने लॉकडाउन टाइम के टाइम अगर हम लोगों ने कार खरीदा, ओके, देन इट वोंट बी एट सो मच यूज़ बिकॉज लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जाता था, सारे अंदर ही रहते थे, तो उस टाइम के लिए कार की कुछ यूज़ नहीं रहती. लेकिन उसी टाइम अगर हम लोगों ने मोबाइल ख़रीदा होता तो उसका यूज़ बहुत, मतलब टाइम के हिसाब से जब हम लोग कुछ भी खरीदते हैं और उसका सेटिस्फेक्शन जब हमें ज़्यादा मिलता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी. नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी जहाँ पे सपोज हम लोग, हाँ सपोज नाउ फॉर एग्जांपल राइस, ओके, राइस महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन उसी राइस को अगर हम लोग साउथ इंडिया में लेके जाएंगे देन द यूटिलिटी ऑफ दैट राइस विल बी मोर. ओके, सो हियर अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस ऑल्सो द यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेंजेस. ओके, सो हियर place, that is known as place utility. Next one is, last one is possession utility. now when Tata Motors are manufacturing trucks, जब तक वो ट्रक उनके कंपनी में या तो उनके फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे रहता है तब तक उसकी कुछ यूटिलिटी यूज़फुलनेस नहीं होती है. लेकिन वही ट्रक जब कोई ख़रीदता है और उसको जब यूज़ करता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. इन द सेम वे व्हेन हेडफोन्स, ओके, हेडफोन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हेडफोन अगर हम लोगों ने इफ़ यू कीप इट in the store then it won't be so much useful, but when we buy that and when we listen to the music using that headphones then it is having more utility, so that is known as possession utility. So these are some of the types of utility. Okay, so first कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, ओके, तो हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. द टू टाइप्स ऑफ मेजरिंग टेक्निक्स विच कैन बी यूज टू एनालाइज कंज्यूमर्स बिहेवियर. द फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी थियरी एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी थियरी. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कार्डिनल अप्रोच. नाउ कार्डिनल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय मैनी इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने बहुत, मतलब कार्डिनल नंबर्स यूज़ करके उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू मेजर द यूटिलिटी. दे यूज्ड नंबर्स लाइक 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स यूज़ करके उन्होंने बताया कि इसकी यूटिलिटी 4 है, इसकी यूटिलिटी 5 है. सो दे यूज्ड नंबर्स, okay, to measure the utility. So that was the cardinal approach. So in this cardinal approach, first thing you all are going to learn is law of diminishing marginal utility. Okay, तो ये जो cardinal utility है it can be measured using this formula, that is marginal utility is equal to change in total utility divided by change in consumption by one unit. ओके, एक यूनिट एक्स्ट्रा खाने से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है. एडिशनल यूनिट जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो
मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला है उसका, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन बाय 1 यूनिट. ओके, वेर एज दिस, ये जो फॉर्मूला है, इट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग marginal utility equal to total utility minus total utility minus 1. Okay, that is total utility derived from consumption of n units and total utility from consumption of n minus 1 unit. Okay, so this is the formula. Basically this formula is used for calculating marginal utility. Okay, marginal utility is what? It is derived from by the additions to the total utility derived from the consumption of additional unit. Okay, मैं इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. नाउ हियर सी, law of diminishing marginal utility. Now this is the most important law of consumption. ये जो law है, it is very important. Okay, the law क्या बोलते हैं कि it is derived from the commodity depending on the intensity and urgency of the need for a commodity. मतलब जब हमें उसकी बहुत ज़रूरत रहती है उस कमोडिटी की, उस हिसाब से उसकी यूटिलिटी चेंज होती रहती है. ओके, सो डैट इज, अगर हम लोगों ने ज़्यादा मतलब मोर एंड मोर कमोडिटी अगर हम लोगों ने कंज्यूम किया, तो उसकी जो इंसेंटिसी होती है, मतलब जैसे कि हम लोगों को अगर एक पानी पूरी का प्लेट दिया तो हम लोग अच्छे से खा लेंगे, 2 दिया तो भी हम लोग खा लेंगे, अगर उसको मतलब हमें इतना पसंद है तो 2 खा सकते हैं. लेकिन अगर हम लोगों ने उसका जो क्वांटिटी है वो हम लोगों ने स्लो बाय स्लो इंक्रीज़ करते गए, तो हमें खाने को नहीं होगा. वाई? बिकॉज बाद में इवन इफ वी लाइक, बट द क्वांटिटी व्हेन वी कंज्यूम, द टेस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है. तो वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब एडिशंस होती है तो वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है. इवन इफ द प्राइस गोज डाउन, व्हाट वी डू, वी बाय मोर, बट वो जो मतलब जो रहता है ना कि वी वांट टू ईट, दैट थिंग वोंट रिमेन बिकॉज वी हैव कंज्यूम लॉट. ओके, सो हियर दिस कैन बी एग्जाम, मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इट इज़ गिवन बाय वूम, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. ओके, वो क्या बोलता है कि एवरी इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन obtained from that goes on diminishing. ओके, जो मतलब हम लोगों को अगर प्रोडक्ट देते गए तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएंगी. जैसे कि हम लोगों को बड़ी क्वांटिटी मिल जाती है, वैसे वैसे वो कम होती जाती है मार्जिनल यूटिलिटी. सो हियर द रैशनल कंज्यूमर्स ऑलवेज इक्वेट्स द प्राइस ही pays to the marginal utility from the unit of the commodity. Okay, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, they have given one example, that is here there is units of commodity, that means they have given cake. Okay, हम लोगों ने यहाँ पे केक एग्जाम्पल दिया है. then here total utility, that is also given as TU. Okay, total utility मतलब TU. next is marginal utility MU and price. देखो, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो यूनिट ऑफ कमोडिटी कितना परचेज किया, 1. सो हियर टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो 10, मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो 10. मतलब एक पीस ऑफ केक खाने से हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10. एंड ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी विच वी हैव डिराइव्ड इज 10, क्योंकि एक पीस मतलब कोई भी खा सकता, अच्छे से खा सकता है, व्हेन द प्राइस वॉज 10. लेकिन जब प्राइस 8 रुपये हो गया, व्हेन द प्राइस डिक्रीज बाय 2 रुपीज़, व्हेन इट बिकेम 8 रुपीज़, that time people brought how many quantities, they brought 2 quantities. why? because the price has decreased. total utility कितनी हो गई, 18. okay, 10 plus 8, okay, 18 हो गई. so marginal utility is how much, 8. okay, when the price went on decreased, when by 1 rupee, 1 रुपये से वो decrease हो गया, then people purchase how much, 3. so total utility was 25, marginal utility was 7. okay, then here when the price became 5, okay, उस समय people brought 4 units of what, cakes. okay, total utility became 13, marginal utility became 5. how we got this 5, you all know,
V 25 minus 30, how much? 5. Okay, so here price and marginal utility got equated. Okay, when the price became 2 rupees, people brought 5 units of cake. So here total utility was 32, मार्जिनल यूटिलिटी वॉज 2. देखो जैसे जैसे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती रही, यहाँ पे प्राइस कम होता गया, यहाँ क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, एंड मार्जिनल यूटिलिटी स्लोली स्टार्टेड डिक्रीजिंग. ओके एलेक्स. उसके बाद हियर सी, यहाँ पे नेक्स्ट इज वन, एज एंड व्हेन द प्राइस गोज डिक्रीजिंग. यहाँ पे प्राइस जब कम होती है, हमारे जो यूनिट्स है वो क्या होते हैं, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग. 1 रुपये से कितने हो गए, 7 यूनिट्स ले लिए. एंड इवन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक लेवल तक क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसके बाद वो क्या होती है, माइनस में जाती है. टिल 1, मतलब एक पीस पे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कम जब हम लोग मोर बाय करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है. सो विद दिस टेबल वी कैन से एज एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज्ड इज मोर, बट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है. सो हियर दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड. सी, they say what, when the price of the commodity was 8 rupees, people demanded 2 units of cake. When the price of the commodity was 7 rupees, people demanded 3 units. When the price of the commodity was 5, people demanded 4. So this equated with the marginal utility with price. Okay, देखकर उधर price और marginal utility 5 था. So why this is happening? Because of some of the important thing. First one is income effect. Okay, income effect जो है उसके वजह से भी होता है. जब लोगों के पास ज़्यादा इनकम रहता है, okay, when people have more income, what they do, they buy more. Okay, people buy more. Okay, they spend more on quantity and on the same quantity. Okay, जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा वो परचेजिंग पावर है. सपोज अभी देखो, हमारे पास जब पैसे कम रहते हैं तो हम लोग कम बाय करते हैं, बट व्हेन वी हैव मोर कैश विथ अस और मोर मनी विथ अस, व्हाट वी डू, वी स्पेंड मोर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज substitution effect. Okay, suppose there are 2 things, that is coffee and tea. These are some substitute product. Okay, अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीना स्टार्ट करते हैं. अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो लोग क्या करते हैं, दे